یوم پینتیکوسٹ رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 13ویں آیت تک۔ اولیور جوناتھن کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کی سلامتی ہو۔ موجودہ ویڈیو کے وسیلے سے ہم یوم پینتیکوسٹ کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ قبل از آغاز آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی خدا کے کلام کو ایک منفرد انداز سے سیکھنے اور سمجھنے والے بن سکیں۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ویڈیو کے کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹس بھی ضرور پوسٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جلد از جلد آپ سب تک پہنچ سکیں۔ آئے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تعارف۔ یوم پینتیکوسٹ مسیحی تاریخ کا ایک فیصلہ کن لمحہ ہے جب روح القدس ایمانداروں پر ظاہر ہوا، عہد عتیق کے وعدے پورے ہوئے اور کلیسیا کے عالمی مقصد کا آغاز ہوا۔ ایک ایسی دنیا جو تقسیم، الجھن اور روحانی خشک سالی سے بھرپور ہے۔ یوم پینتیکوسٹ ہمیں خدا کی قدرت دکھاتا ہے جو مختلف اقوام کو متحد کرتی ہے، دلوں کو تبدیل کرتی ہے اور خدا کے پیروکاروں کے اندر خود سکونت اختیار کرتی ہے۔ جب ہم پینتیکوسٹ کی بائبلی بنیادوں اور آج کی دنیا میں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو یہ واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں رہتا بلکہ روح القدس کی زندگی بخش موجودگی کو آج بھی محسوس کرنے کی دعوت بن جاتا ہے۔ موجودہ حوالہ رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 13ویں آیت تک۔ جب عید پینتیکوسٹ کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھی کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگی جس طرح روح القدس نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے ہی وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور الامی اور میسوپوٹامی اور یہودیا اور کپدیکیا اور پنتس اور آسیا اور فروکیا اور پمفیلیا اور مصر اور لبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں جو قرینے کی طرف ہیں، اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے۔ پس منظر رسولوں کے اعمال اس کے دوسرے باب کی پہلی سے 13ویں آیت میں روح القدس کے ظہور کا ذکر ملتا ہے جو خداوند یسوع مسیح کی مردوں میں سے قیامت کے 50ویں روز یوم پینتیکوسٹ کو ہوا۔ شاگرد ایک جگہ جمع تھی جب یکا یک زوردار آندھی کے سناٹے کی سی آواز سے گھر معمور ہو گیا، اور شاگردوں پر آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں ظاہر ہوئی۔ وہ سب روح القدس سے معمور ہو گئے اور مختلف زبانیں بولنے لگے۔ یہ معجزہ ان یہودیوں کو حیران کر گیا جو دنیا کے مختلف ممالک سے یروشلم آئے تھے۔ انہوں نے شاگردوں کو اپنی اپنی قومی زبان میں خدا کے عجیب کاموں کا اعلان کرتے سنا۔ مختلف زبانوں کی موجودگی انجیل کی عالمگیریت کی علامت تھی۔ کچھ لوگ حیران ہوئے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، جبکہ دوسروں نے تمسخر اڑایا کہ یہ لوگ تازہ مے کے نشے میں ہیں۔ یہ واقعہ خداوند یسوع مسیح کے روح القدس کے وعدے بمطابق رسولوں کے اعمال اس کے پہلے باب اور اس کی 8ویں آیت کی تکمیل تھا، اور انجیل کے عالمی مقصد کا آغاز بھی تھا۔ پیغام کے 3 کلیدی حصوں پر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا،
खित्ता बाबुल में डाले गए इंसान की जुबान में इख्तलाफ का उल्टाव। पेंतिकोस्त ने बाबुल में ज़बानों में डाले गए इख्तलाफ बमुताबिक पैदाइश की किताब उसके 11वें बाब को पलट दिया। रूहुल कुद्स के जरिए मुख्तलिफ जुबानों में इत्तेहाद कायम हुआ। पेंतिकोस्त के दिन खुदा ने कौमों को खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम के तहत जमा किया। जॉन स्टॉट कहते हैं, जुबानों का तोहफा बाबुल में डाले गए इंसान की जुबान में इख्तलाफ की उलझन का एक इरादी उल्टाव था। कौमें अब खुदावंद यीशु मसीह में मुत्तहिद हो गई हैं। एंटी राइट कहते हैं, पेंतिकोस्त तमाम कौमों के लिए इरशाद आज़म के पैगाम का आगाज है जो हर लिसानी रुकावट को अबूर करता है। बिली ग्राम कहते हैं, रूहुल कुद्स जुदाई और इख्तलाफ की दीवारों को गिराता है और हमें खुदावंद यीशु मसीह में एक करता है। ये वाक़या रूहुल कुद्स के जरिए इत्तेहाद की बहाली की अलामत है। दूसरा, यौम पेंतिकोस्त में शरीयत दिलों पर नक्श की गई। पेंतिकोस्त पर खुदा ने मुकद्दस यिर्मयाह नबी की पेशन गोई पूरी की जब खुदा ने अपनी शरीयत को ईमानदारों के दिलों पर रूहुल कुद्स के जरिए लिखा। बमुताबिक मुकद्दस यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 31वां बाब और उसकी 33वीं आयत और रसूलों के अमाल और उसका 2रा बाब। मार्टिन लॉयड जेम्स कहते हैं, रूहुल कुद्स हमारे दिलों पर शरीयत लिखता है और वो करने की कुव्वत देता है जो शरीयत करने का मुतालबा करती थी, मगर शरीयत के मातहत उसे करना नामुमकिन था। चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं, नया अहद दिल को तब्दील करता है और सच्ची फरमाबरदारी पैदा करता है। जे.आई. पैकर कहते हैं, रूहुल कुद्स की सुकूनत फर्ज या अदायगी को खुशी और शादमानी में बदल देती है। यौम पेंतिकोस्त एक बैरूनी अहकाम से अंदरूनी तब्दीली की तरफ रूहानी मुंतकिली का लम्हा था। तीसरा, रूहुल कुद्स की आग बहैसियत खुदा की इंसान के साथ सुकूनती हुजूरी। आग अहद अतीक में खुदा की मुकद्दस हुजूरी की अलामत थी और यौम पेंतिकोस्त पर ये हर ईमानदार पर जाहिर हुई। बमुताबिक रसूलों के अमाल उसका 2रा बाब और उसकी 3री आयत। जॉन कैल्विन लिखते हैं कि रूहुल कुद्स की आग हमारे दिलों को जलाकर हमें खुदा के मकदस यानी कि हैकल में तब्दील करती है। आर.सी. स्प्रोल कहते हैं, रूहुल कुद्स की आग पाकीज़गी और खिदमत के लिए दलेरी अता करती है। वॉचमैन नी लिखते हैं, आग की फटती हुई ज़बानें जाहिर करती हैं कि खुदा अब अपने लोगों में सुकूनत करता है। यौम पेंतिकोस्त ने खुदा की जाती और करीबी मौजूदगी को हर ईमानदार के अंदर जाहिर किया। अहद अतीक के साथ ताल्लुक। यौम पेंतिकोस्त अहद अतीक के कई अहम मौज़ूआत की तकमील है। पैदाइश की किताब उसके 12वें बाब में होने वाले ज़बानों में इख्तलाफ की उलझन के वाक़े का उलट है। खित्ता बाबुल में तो खुदा ने इंसानों की जुबानें मुंतशिर कर दी, लेकिन यौम पेंतिकोस्त पर रूहुल कुद्स ने ईमानदारों को मुख्तलिफ जुबानें बोलने की कुदरत दी। बमुताबिक अमाल की किताब उसका 2रा बाब, ताकि वो मुत्तहिद हो सके और खुदा बाप का मुकद्दस इब्राहिम की नस्ल से किया गया अहद पूरा हो, यानी कि तमाम कौमें बरकत पाएंगी। बमुताबिक पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत। यौम पेंतिकोस्त हफ्तों की ईद के साथ मुंसलिक है जो कोहे सीना पर शरीयत के ज़हूर की यादगार थी, जबकि उस वक्त शरीयत पथरीली तख्तियों पर लिखी गई। मुकद्दस यिर्मयाह नबी ने नए अहद की पेशनगोई को पूरा किया कि शरीयत दिलों पर लिखी जाएगी। बमुताबिक मुकद्दस यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 31वां बाब और उसकी 33वीं आयत। रसूलों के अमाल और उसके 2रे बाब में ये नबूवत पूरी हुई। आग अहद अतीक में खुदा की हुजूरी की अलामत थी, जैसा कि जलती झाड़ी और कोहे सीना पर आग। यौम पेंतिकोस्त पर आग की फटती हुई जुबानें हर ईमानदार पर आ ठहरी। बमुताबिक रसूलों के अमाल उसका 2रा बाब और उसकी 3री आयत। और मुकद्दस हिजकिय्याह नबी की पेशन गोई बमुताबिक हिजकिय्याह नबी का सहीफा उसका 36वां बाब और उसकी 27वीं आयत भी पूरी हुई कि खुदा अपनी रूह अपने लोगों के बातिन में डालेगा। अमली इतलाक। आज की जदोजहद और तेज रफ्तार दुनिया में यौम पेंतिकोस्त हमें चैलेंज करता है कि हम सकाफती, समाजी और लिसानी फर्क के बावजूद इत्तेहाद को अपनाएं। जैसे रूहुल कुद्स ने इब्तदाई ईमानदारों को ऐसी ही रुकावटों के बावजूद पैगाम पहुंचाने की कुव्वत दी, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगियों में खा ऑनलाइन रहते हुए, खा मुलाजमती सरगर्मियों में काम करते हुए और खा माशरे में रहते हुए इन तमाम
अनासर की तकसीम को फरोग देने से गुरेज करना चाहिए। यौम पेंतिकोस्त में ईमानदारों के अंदर पैदा होने वाली अंदरूनी तब्दीली हमें याद दिलाती है कि असल तब्दीली अंदर से शुरू होती है। महज ज़ाहिरी शरीयत या रिवायात काफ़ी नहीं, हमें रूहुल कुद्स की क़यादत में अपने दिलों में एक ऐसा जज्बा पैदा करना चाहिए जो हमारे रोज़मर्रा रवैयों और अमाल पर असर अंदाज होकर हमारे अंदर मुस्बत सोच को बेदार करें। यौम पेंतिकोस्त में ज़ाहिर होने वाली रूहुल कुद्स की आग खुदा की कुव्वत बख्श हुज़ूरी की अलामत है, जो हमें सच्चाई इख्तियार करने, खिदमत का जज्बा अपनाने और खुद को खुदा के लिए वक्फ करने की जुर्रत अता करती है। रूहुल कुद्स के वसीले से हम जदीद दौर के चैलेंजेस का सामना दलेरी, मोहब्बत और फरोतनी से कर सकते हैं। हासिल मुताला, यौम पेंतिकोस्त हमें याद दिलाता है कि रूहुल कुद्स आज भी जिंदा और मुतहर्रिक है। जुदाई, मसाइल और मुश्किलात की दीवारें मिस्मार करके दिलों को नया कर देता है। इस मुनकसम और पेचीदा दुनिया में हम रूहुल कुद्स से भरपूर जिंदगी गुजारने के लिए बुलाए गए हैं। ऐसी जिंदगी जो इत्तेहाद, अंदरूनी तब्दीली और जुर्रतमंदाना गवाही से इबारत हो। जैसे इब्तदाई कलीसिया को रूहुल कुद्स की आग से तकवीयत मिली, वैसे ही हम भी खुदा की हुजूरी को अपनी जिंदगी के हर पहलू में खुशामदीद कह सकते हैं। आए आज हम सब मिलकर दिल का दरवाजा रूहुल कुद्स के लिए खोल दे, ताकि हम ऐसे बर्तन बने जो खुदा की मोहब्बत के और उसकी अमन सलामती के पैगंबर बने। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बाइबल मुकद्दस के मुतल्लिक आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी हो। एक बार फिर से आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीजों अकारिब तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो के वसीले से यौम पेंतिकोस्त के मुतल्लिक जान सकें। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी ज़रूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।